ٹھیک ہے. مصنف عبدالرزاق میں نور والی حدیث ریلوی حضرات اکثر پیش کرتے ہیں, تو مفتی اکمل صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا کہ اگر مفتی اکمل صاحب کو چاہیے پہلے مصنف عبدالرزاق کا وہ چیپٹر ثابت کریں. یہ بریلویوں نے کوئی 15-20 سال پہلے چیپٹر کہیں سے دریافت کیا ہے. جس کاغذ کے اوپر وہ چیپٹر لکھا ہے وہ تو آج کے زمانے کا کاغذ ہے, خود بنا کے. یعنی آج تو ہم وہ ہے جو کاربن ڈیٹنگ سے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ نسخہ کہتے ہیں بہت پرانا نسخہ افغانستان سے ملا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کے نور کو اللہ نے پیدا کیا سب سے پہلے. مصنف عبدالرزاق دنیا میں ایک مشہور کتاب ہے, موجود ہے. اگر کہ جی بخاری کا ایک گم شدہ چیپٹر مجھے جو ہے وہ اسپین سے مل گیا, بھئی بخاری صاحب کو پتا ہے کہ کیا ہے, تو وہ جو چیپٹر نکالا ہے تو اس کی کاربن ڈیٹنگ کروا لیتے ہیں. امام عبدالرزاق 235 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, تو آج چل رہا ہے 1439 ہجری. ٹھیک ہے جی, تو آپ دیکھ لیں 1200 سال پرانا اگر وہ کاغذ نکل آتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں. اگر وہ کاغذ آج کا, رائٹنگ آج کی, تو پھر اسی کہیں گے تو ہی کدھر علماء نے بہ کے بڑھایا ہے. ٹھیک ہے نا, نسخہ دریافت ہو گیا, آج کل تو فوراً چیک ہو جاتا ہے, جھوٹ پکڑا جاتا ہے. پرانا اگر نسخہ ہوگا تو اتنا پرانا ہی ہوگا نا, کاربن ڈیٹنگ سے پتہ چل رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا مصنف عبدالرزاق کے گمشدہ ابواب کے متعلق یہ بات کر رہا ہے کہ یہ بریلویوں نے جو کہا ہے کہ ہم نے ایک باب ڈھونڈ لیا ہے, دریافت کر لیا جو گم ہو گیا تھا. یہ کاغذ پرانا نہیں, نیا کاغذ ہے. انہوں نے گھر میں بیٹھ کے حدیثیں گھڑی ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے کثیر تعداد میں علماء یہ کہیں کہ مصنف عبدالرزاق کے کچھ ابواب گم ہو گئے تھے جو ہم نے دریافت کر لیے ہیں, اور ان میں کچھ احادیث ہیں. اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے. آپ خود دیکھ لیں گے دلائل سے. سب سے پہلی بات یہ کہ اس جو کاغذ کی بات کر رہا ہے یہ بالکل مصنف عبدالرزاق کے پرانے کاغذ ہیں. مصنف عبدالرزاق کو نئے طور پر چھپایا گیا 1390 ہجری میں بیروت والوں نے. اس میں کچھ ابواب موجود نہیں تھے. مولانا حبیب الرحمن دیوبندی خود کہتے ہیں, جو اس کے سرپرست تھے, کہتے ہیں اس میں کچھ ابواب نہیں ہیں. اس لیے بہت سارے جو ہے علماء کو تشویش لاحق ہوئی کہ 300 سال پہلے 400 سال پہلے کی جو کتابیں ہیں, مثلا مواہب الدنیا میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حدیث بیان کی جاتی ہے, اے جابر بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں اس حدیث کو مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. اسی طرح علامہ ابن حجر ہیتمی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کو مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. عبدالحق محدث دہلوی اسی حدیث کو عبدالرزاق کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. تو اب اس جو اب نئی چھپی ہے مصنف عبدالرزاق, اس میں وہ حدیث کیوں نہیں ہے؟ اور مخالفین نے بھی اعتراض کیا, کیونکہ بار بار یہ سنائی جاتی تھی اور ان کتابوں میں حوالہ دیا گیا تھا کہ مصنف عبدالرزاق میں یہ حدیث ہے. تو علماء کو جستجو ہوئی کہ یہ حدیث جب ہم بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں, تو یہ تو اس میں ہے نہیں. جب دیکھا گیا کہ اس میں کچھ ابواب ہیں جن میں نام تو لکھے گئے ابواب کے, لیکن اس میں حدیثیں نہیں ہیں. پھر جستجو کی گئی, ڈھونڈا گیا, بالآخر جو ہے وہ ڈاکٹر عیسیٰ بن عبداللہ القریٰ یونیورسٹی سعودی عرب اس کے فارغ التحصیل ہیں, انہوں نے اس نسخے کو جو ہے وہ دریافت کیا, اور بعد میں اس کی جو پرنٹ وہ اس کتاب میں بھی انہوں نے ڈال دی. کتاب آپ کے سامنے مصنف عبدالرزاق کی پہلی جلد کے 10 گمشدہ ابواب, اور وہی خط ہے جو 1390 میں بیروت والوں نے چھاپا تھا. مصنف عبدالرزاق سے وہ پرانے خط سے لے کر نئے خط میں جو انہوں نے ڈیولپ کیا, تو وہی خط ہے اس میں. اور انہوں نے کہا کہ میں نے پوری کوشش کی, اسی مقصد کے لیے میں مدینہ منورہ حاضر ہوا, اور مکتبہ عارف حکمت حسینی میں کام کرنے والے بعض ماہرین مخطوطات سے ملا. انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے پاس جو مخطوطہ ہے اس کے مشابہ ہے جو 1390 میں پرانے مخطوطات تھے, ان سے لے کر 1390 میں نئے مخطوطات نئے طریقے سے مصنف عبدالرزاق کو چھاپا گیا. جو پرانے مخطوطے اس وقت موجود تھے بیانی اسی طرح ہے, وہ الفاظ بھی وہی ہیں, انداز بھی وہی ہے بالکل. یعنی انہوں نے کہا کہ میں پوری جستجو سے میں نے دیکھا, اور مجھے جب یقین ہوا اس کے بعد میں نے شائع کیا کہ یہ وہی مخطوطہ ہے گمشدہ جو کہ مصنف عبدالرزاق میں پہلے شامل تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 300 سال 400 سال پہلے کی کتابوں میں موجود ہے وہ حدیث, اور اس نئے جو مصنف عبدالرزاق میں اس میں موجود نہیں. اور جو مولانا
हबीबुर्रहमान आज़मी साहब वो ख़ुद मुकदमा में लिखते हैं कि जो आजकल मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ लिखी गई है या नेट पर मौजूद है उसमें कुछ अबवाब गुम हैं। उसकी वजह यह है कि पुराने जितने भी किताबें हैं उनमें वो हदीस मौजूद है, जैसा कि मैंने आपको पहले सरसरी बताया। अब मैं आपको बताता हूँ मवाहिबुल लुदनिया में यही हदीस जाबिर वाली, ए जाबिर बेशक अल्लाह ताला ने तमाम अशिया से पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया। जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 55 पे इस हदीस को लाते हैं। इमाम अहमद बिन मोहम्मद बिन अबी बकर कुस्तलानी अल मुतवफ़ा 923 हिजरी। अब इसने ये कहा कि ये बरेलवी ने अपने घर में बैठ के इसको बनाया है। अगर ये आज इसको बनाया गया 15 या 20 साल पहले बनाया गया तो 400 साल पहले उसी हदीस को इमाम कुस्तलानी लिखते हैं। यानी ये कितना झूठ बोल रहा है अहले सुन्नत पर कि इन्होंने अपने घर में बैठ के उस हदीस को लिखा है। वही हदीस 400 साल पहले इमाम कुस्तलानी अपनी किताब में दर्ज करते हैं। इसी तरह आगे देखिए इमाम अब्दुल गनी नाबलुसी उनकी किताब अल हदीक़तुन नदिया उसमें इस वाक़े को, इस हदीस को नकल करते हैं। अब आप देखें 300 साल पहले इन्होंने अपनी किताब में नकल किया और ये कह रहा है कि इन्होंने अब ये बनाई है। इसी तरह मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अल मुतवफ़ा 1014 वो भी अपनी किताब अल मौरिदुर रवी फिल मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसमें सफ़ा नंबर 40 पे इस हदीस को नकल करते हैं। फतावा हदीसिया में अल्लामा इब्न हजर हैतमी रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 974 हिजरी यानी 400 साल पहले के ये बुजुर्ग हैं, उन्होंने किताब लिखी फतावा हदीसिया सफ़ा नंबर 247 पे इस हदीस को नकल करते हैं। अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 1052 हिजरी मदारिजुन नबुवा में वो इस हदीस को नकल करते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि बरेलवियों ने 15 या 20 साल पहले हदीस बनाई हो और उस हदीस को 400 साल पहले बुजुर्ग लिख रहे हों, उस हदीस को 300 साल पहले बुजुर्ग लिख रहे हों, उस हदीस को 200 साल पहले किताबों में लिखा जा रहा है। तो आपको यकीन होगा कितना झूठ बोल रहा है। ये हदीस मौजूद थी मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में, बाद में वो जो अबवाब थे गुम हो गए या बल्कि गुम कर दिए गए क्योंकि उसमें आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान मौजूद थी। अब जब ये बात वाज़ेह हो गई कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में जो हदीस है कि ये जाबिर सबसे पहले तमाम अशिया से पहले अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को पैदा किया, हमारा अकीदा क्या इस बारे में आप देखिए। शाह अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह आप फरमाते जो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बशर होने का इनकार करे वो काफिर है। फतावा रज़िया में लिखते हैं और ये किताब आपके सामने इसमें भी है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो मुतलकन हुजूर से बशरियत की नफ़ी करे वो काफिर है। इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह फरमाते हैं। तो अब्दुल हकीम शरफ काजी साहब लिखते हैं कि लीजिए अब तो इख्तलाफ ख़त्म होना चाहिए। आले सुन्नत व जमात कहते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेमिसल बशर भी हैं और नूर भी हैं। और इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह इस कुरान पाक की आयत को भी दलील बनाते हैं, कुल सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला, कि मैं नहीं हूँ मगर एक बशर इंसान हूँ और रसूल हूँ। तो कुरान पाक की आयत से साबित होता है कि आप बशर हैं, तो वो कहते हैं बशरियत का इनकार करना कुफ्र है। और कुरान पाक की आयत ही से है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूर हैं। जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सूरह माइदा आयत नंबर 15 में तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह ताला की तरफ से नूर आया और किताब मुबीन। और इसकी जो सबसे पहले तफसीर की है इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला ने, वो कहते हैं कि नूर से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसके बाद इब्न जरीर तबरी ने वो भी कहते हैं नूर से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह वो भी इस आयत की तशरीह करते हैं नूरुम व किताबुम मुबीन, नूर से मुराद आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। जलालैन में भी यही क़द जाअकुम मिनल्लाह नूर, नूर से मुराद आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। लिहाजा इस बात का हमारा ये अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूर भी हैं और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बशर भी हैं। नूर इस तरह नहीं कि जिस तरह चाँद या सूरज या, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नूर हिदायत भी बनाया है, बशर भी हैं। और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हिस्सी तौर पर भी नूर अता फरमाया है। जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बात करते थे तो आपके दांतों से इस तरह नूर जो है कोई शुआएं निकलती थी। चंद हवाले में आपको देता हूँ। हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चेहरा लोगों में सबसे ज़्यादा हसीन और रंग सबसे ज़्यादा रोशन था। जो शख्स भी आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक के जमाल को बयान करता उसको 14वीं रात के चाँद से तशबीह देता और कहता कि आप हमारी नज़र में चाँद से ज़्यादा हसीन हैं।
आपका रंग चमकदार और चेहरा मुनव्वर था और चांद की तरह चमकता था। दलाइल नबुव्वत जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 300। इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी अपनी किताब शमाइल मुहम्मदिया में हदीस नंबर 15 पर, और इसी तरह बैहकी में भी हदीस है, सुनन दारमी में जिल्द नंबर 1 सफ़ा हदीस नंबर 58 है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने के 2 दांतों में झुर्री यानी खला थी। जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाते तो आपके सामने के दांतों से नूर की तरह निकलता हुआ दिखाई देता था। इसी तरह दारमी में हदीस है, हदीस नंबर है जिल्द नंबर 1 और हदीस नंबर 59 है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह तआला अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी शख्स को सखी देखा, न बहादुर न रोशन चेहरे वाला। इसी तरह शमाइल मुहम्मदिया हदीस नंबर 10 में और सुनन दारमी जिल्द नंबर 1 और हदीस नंबर 57 में हज़रत जाबिर बिन समरा रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एक चांदनी रात में देखा। मैं कभी आपकी तरफ देखता और कभी चांद की तरफ, बखुदा आप मेरे नज़दीक चांद से ज़्यादा हसीन थे। इसी तरह दारमी में हदीस है, हदीस नंबर 60 है। अबू उबैदा बिन मोहम्मद बिन अम्मार बिन यासिर ने रबी बिन मुअव्वज़ बिन अफरा से कहा, हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सिफत बयान कीजिए। उन्होंने कहा, ए मेरे बेटे, अगर तुम आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखते तो तुम तुलू होने वाले आफताब को देखते। इस तरह बहुत सारी अहादीस हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हिस्सी तौर पर भी नूर अता फरमाया है। नूर हिदायत भी हैं, हिस्सी तौर पर भी आपको वाफर मिकदार में नूर अता हुआ है, और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कामिल और अकमल बशर हैं। ये हमारा अकीदा है। तो दोस्तों, आपको मालूम हुआ कि किस तरह इसने झूठ बोला अहले सुन्नत पर कि इन्होंने घर में बैठ के जो ये बनाया है। हालांकि हकीकत आपके सामने आई, इसको बनाया नहीं गया बल्कि पुराने मखतूते से इसको ढूंढा गया। उसकी वजह ये बनी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि 300 साल 400 साल पहले जो किताबें हैं इब्न हजर हैतमी की, अल्लामा कुस्तलानी की, मुल्ला अली कारी की, उसमें मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ की हदीस मौजूद है। मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ का हवाला देते हैं। आज जो हम मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ को उठाते हैं तो उसमें वो मौजूद नहीं होता, तो मालूम होता है कि उस वक्त थी और बाद में इसको निकाला गया। ऐसे चोरों ने उसको निकाला, फिर फुकहा ने और उलमा ने उस मखतूते को ढूंढा, जो मिला, और बेआईनी उसी मखतूते से वो मैच करता है जो 1390 में पुराने मखतूतों के से लेकर आज नया जो उसके बाद बेरूत वालों ने छापा मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ को, तो पुराने मखतूते के बेआईनी उनको वो मखतूता मिला। उन्होंने तसल्ली की और बाद में अवाम को बताया कि कुछ लोगों ने उस मखतूते को छुपाया था जिसमें आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान मौजूद थी। तो इसने क्या किया कि अपने घर से इन्होंने बनाया है। भाई, अगर इन्होंने घर से बनाया होता तो 15-20 साल पहले बनाया है ना, तो 400 साल पहले इब्न हजर हैतमी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह वो उस हदीस को कैसे नकल कर रहे हैं। दोस्तों, सच और झूठ आपके सामने आ गया। ये कहता है कि 15 से 20 साल पहले बनाया गया है, इन्होंने बनाया 15-20 साल पहले, और इन्होंने 400 साल पहले उस हदीस को मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ से नकल किया है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक हदीस 15-20 साल पहले नौज़ुबिल्लाह बनाई गई और उसको 400 साल पहले मुहद्दिसीन नकल कर रहे हैं। तो मालूम हुआ कि पहले वो मौजूद था, बाद में लोगों ने निकाला और उसको जो है वो गुम करने की कोशिश की, लेकिन फुक़हा ने कोशिश की और वो पाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।